Hello class. Now in this lecture we will see the Fourier's law of conduction. Okay. So in the previous lecture we have gone through a mode of heat transfer, that is conduction, convection and the radiation. So in those modes, whatever the mode we have seen in the previous lecture, those mode are governed by some laws. Okay, those law we are supposed to see in this lecture. Okay, the first law, that is Fourier's law of conduction, the name itself indicating this law are governing the heat transfer, the rate of heat transfer happen or occur in case of the conduction. Okay, so similarly in case of the Newton's law of cooling is giving you the rate of heat transfer in case of the convection. Step and Boltzmann law will give you the rate of heat transfer or rate of heat energy emitted during a radiation. So those three laws is very important whenever we talk about the mode of heat transfer. Okay, the first law, this is the Fourier's law of heat conduction. We will see the statement. We will see first of all, the law states that heat transfer rate is depends on. Okay, the law states that heat transfer rate is depends on the temperature difference varying in direct proportion. Okay, temperature difference varying in direct proportion, directly proportional to the area of cross section. Okay, and perpendicular to heat flow and inversely proportion to the length of the heat flow path. Okay, so as per the statement of this Fourier's law, we can summarize the thing like कि जो भी heat energy होता है, the rate of heat energy transfer, the rate of heat energy transfer is nothing but कितना heat energy per unit time. The rate of heat energy का meaning होता है the amount of heat energy per unit time, उसको बोलते हैं rate of heat energy transfer, जो है ड्यूरिंग द कंडक्शन वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है. द फर्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन टू सिस्टम इन विच heat transfer is take place. Okay, we will have this thing on new page. Okay, so rate of heat transfer is nothing but the Q. Okay, Q is nothing but the Q is nothing but the rate of heat transfer. If you talk about the unit of this thing, okay, rate of heat transfer is nothing but the heat energy. अब ये हीट एनर्जी के बारे में बात करें तो हम हीट एनर्जी बोलेंगे कुछ एक काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की तो बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, तो हीट एनर्जी बोलेंगे. तो हीट एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम. ओके, सो हीट एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, इसका अगर हम यूनिट निकालने को जाए तो इट विल बी लाइक दैट. क्या रहेगा, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, पर यूनिट टाइम सेकेंड, विल गिव यू वैट. ओके, सो हीट एनर्जी, द रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, प्रोपोर्शनली साइन आएगा यहाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी द टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन टू सिस्टम. अब ये कौन से टू सिस्टम है, जैसे कि बोला था सिस्टम 1 और सिस्टम 2. अब इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है क्या है, वो अभी वो कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये लॉ क्या है, कंडक्शन. ये जो लॉ है वो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को गवर्न करता है. सो ये जो सिस्टम 1 है और सिस्टम 2 है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में चाहिए. ओके, सो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 एक दूसरे के कांटेक्ट में है. ओके, देयर आर इन कांटेक्ट, ओके, विथ ईच अदर. और क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T2. ओके, T1 माइनस T2. ओके, सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन टू सिस्टम्स. ओके, सो हम इसको बोलेंगे dt इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, again it is directly proportional to the area perpendicular to the heat transfer.
फॉर एग्जाम्पल अभी सर्कल लिया मैंने, इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा आपको परपेंडिकुलर या समझने में। समझो यहाँ बोन फायर है और ये बोन फायर डायरेक्टली कांटेक्ट में है इसके, ये सरफेस के। सो मैंने कितना सरफेस एरिया इसके कांटेक्ट में है इस बोन फायर के। और अनदर एग्जांपल, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ दैट पॉट, नीचे बर्नर लगा है इसके और डायरेक्टली कितना एरिया इसके कांटेक्ट में है। ओके, so that surface area perpendicular to the heat flow, surface area perpendicular to the heat flow, so that area comes here. Okay, the rate of heat flow, the rate of heat transfer is directly proportional to temperature difference, perpendicular surface area, and this thing is inversely proportional to the distance between or distance travel by heat energy. Okay, जैसे कि एग्जांपल था, ये एग्जांपल था हमारा कैंटिलीवर का। इस एंड में मैंने क्या किया था, बर्नर रखा था और ये हमारा फिक्स एंड था। तो ये हमारा लेंथ हो गया, ओके, एल। इस एंड से लेके इस एंड पे मैं सिर्फ हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ और इस एंड पे आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट टू फील सम वार्मनेस। इफ आई रिड्यूस दिस डिस्टेंस, ये बर्नर मैंने यही लगा दिया, ओके, एंड मैंने टाइम कैलकुलेट किया जब बर्नर नज़दीक था इस फिक्स सपोर्ट के, देन आई विल फील कि कुछ जल्दी इस केस से इस केस में जल्दी मुझे वार्मनेस फील हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, एल का क्या हो गया, कम हो गया। सो डिस्टेंस हैव टू ट्रैवल बाय हीट एनर्जी, दैट इज ऑल्सो मैटर, कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इस एंड से लेके इस एंड तक, ओके, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा दैट इज पाथ नीड हैव टू बी ट्रैवल बाय दैट हीट एनर्जी, जितना बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा, रेट ऑफ हीट एनर्जी, रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो कम होगा। सो दिस रेट ऑफ हीट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पाथ, और उसको हम बोलते हैं dx। ओके, dt इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम, दिस एंड और दिस एंड के, इस एंड और इस एंड के बीच में का टेम्परेचर डिस्टेंस। एरिया बोलेंगे तो ये अगर इसका क्रॉस सेक्शनल लिया मैंने इस कैंटिलीवर बार का, तो समझो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये सरफेस एरिया, ओके, वो रहेगा इसका सरफेस एरिया। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो इस एंड से लेके इस एंड तक का डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे हम, जितना हम दूर लेके जाएंगे इस फिक्स सपोर्ट से बर्नर को, उतना ज़्यादा टाइम लेगा अनदर एंड तक हीट पहुंचने के लिए। ओके, जितना हम नज़दीक लेके जाएंगे बर्नर को इस फिक्स सपोर्ट से, ओके, उतना जल्दी हमारा हीट एनर्जी अनदर एंड तक वार्म करेगा। सो दैट इज अ डिस्टेंस। ओके, सो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट कि जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि फूरियर्स लॉ ऑफ हीट एनर्जी, उसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। वी विल टेक दिस थिंग on the paper. So this is the thing, Q is directly proportional to the temperature difference between two systems, directly proportional to the surface area or surface area which is perpendicular to heat flow, and inversely proportional to the path have to travel by heat energy to reach at that system. Okay, अगर डायग्राम अगर वो बोले तो ये है हमारा कैंटिलीवर बीम। ओके, यहाँ हमने बर्नर लगाया, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सिस्टम, टू एंड, दैट इज dx। ओके, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये हो गया एरिया। ओके, उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस ये T2 एंड T1, सो T2 माइनस T1 विल गिव यू dt, दैट इज dt। ओके, सो दिस इज अ फिर, अब ये प्रोपोर्शनल सॉइड हमें निकालना है, सो फॉर दैट पर्पस we will have to introduce a proportionality constant, so that is k dt by dx a. So this is your Fourier's law of heat, Fourier's law of heat conduction. Okay, now we will see the example, one by one we will see how the heat energy, rate of heat energy will affect on the basis of these three factors. This is the first factor, second factor, and third factor. Now one more factor get added over here, that is k, that is called as a proportionality constant. That proportionality constant is called as a thermal conductivity.
Okay, we will see this thing is later, but first of all we will see this thing. Okay, dt a and dx, इसके वजह से कैसे हमें हमारा जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो अफेक्ट करता है. ओके, just for the dx, just take the example of dx. जैसे कि हमने यहाँ लिया था. ओके, यहाँ बर्नर लोकेट किया है, उसके बाद यहाँ बर्नर लोकेट किया है हमने. ओके, उसके बाद यहाँ बर्नर लोकेट किया है हमने. 3 डिफरेंट केसेस कर रहे हैं हम. द फर्स्ट केस, द सेकेंड केस एंड द थर्ड केस. ओके, अगर पहला केस में अगर हमने बर्नर यहाँ लोकेट किया है विच इज एट दिस पोजिशन, सो ड्यूरिंग दिस टाइम हम सम अमाउंट ऑफ इट दे रहे हैं एट फ्री एंड. सो अनदर एंड में हीट एनर्जी कन्वे होने के लिए जो टाइम लगने वाला है, फॉर एग्जांपल समझो 15 मिनट्स लगेगा. फॉर एग्जांपल जब मैंने सेकेंड पोजीशन पे बर्नर रखा मिडल ऑफ द बीम, दैट टाइम अनदर एंड टेम्परेचर पहुंचने के लिए, हीट एनर्जी कन्वे होने के लिए मुझे टाइम लगा 10 मिनट्स का. और वेन एवर आई एम पुटिंग बर्नर वेरी नियर टू फ्री एंड, सॉरी फिक्स्ड एंड, देन यहाँ से लेके यहाँ तक हीट एनर्जी को कन्वे होने के लिए मुझे टाइम लगा T3 इज ओनली 5 मिनट्स. सो रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर बढ़ गया जैसे कि डिस्टेंस कम हो गया इस एंड से इस एंड तक, इस एंड से इस एंड तक, इस एंड से इस एंड तक. सो वेन एवर वेरी नियर टू फिक्स एंड, दैट टाइम रेट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो गया, एक्सीलरेट हो गया. हीट एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम बढ़ गया. ओके, इस केस में रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम कम था, इस केस में उससे ज़्यादा था, इस केस में उससे ज़्यादा था. ओके, सो जितना डिस्टेंस हम कम करेंगे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से और रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में, उतना हमारा क्या होगा, हीट एनर्जी, रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर बढ़ जाएगा. सो dt बढ़ा, सॉरी dx कम होगा, दैट टाइम हमारा क्या होगा, रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर बढ़ेगा. ओके, एंड वाइस वर्सा. अब टेम्परेचर डिफरेंस, अगर ये जो एंड है वो समझो 10 डिग्री सेल्सियस पे है और ये जो एंड है वो 9.89 डिग्री सेल्सियस पे है. सो इन दोनों एंड में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रहेगा वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है इन दोनों के एंड में, सिर्फ 0.11 का. ओके, 0.11 का डिफरेंस इन दोनों के एंड में, मतलब 0.11 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस है इस एंड में और इस एंड में. सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या रहेगा, कम रहेगा. whenever this is a 10 डिग्री सेल्सियस एंड दिस वन इज द 1 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 9 डिग्री सेल्सियस का. जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है दो सिस्टम के बीच में इन टर्म्स ऑफ द थर्मल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ द हीट एनर्जी, दैट टाइम रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो विल increases. So whenever dt यहाँ जो dt है that is nothing but the temperature difference between this end and this end. Okay, means T1 minus T2. Always T1 is the temperature of high temperature reservoir and T2 is the temperature of low temperature reservoir. Okay, so always this thing will come positive, not negative. So T1 हमेशा high temperature reservoir रहेगा और T2 is the temperature of low temperature reservoir and the हाई टेम्परेचर रिजर्वायर. तो जो भी dt रहेगा व्हेनेवर वो इंक्रीज होगा तब हमारा Q होगा वो इंक्रीज होगा. ओके, और वाइस वर्सा, अगर dt कम हो गया तो Q भी क्या होगा, कम होगा. नाउ एरिया, अब ये जो है, अगर ये जो बार है, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि हीट फ्लो के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर हो, हमारा हीट एनर्जी कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. कौन से, इस डायरेक्शन में. So the area which is perpendicular to the heat flow is nothing but this one. This is cross sectional area. Okay, surface area जैसे कि हम बोलते हैं surface area, but surface area कब बोलेंगे उसको, जब ये heat flow के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रहेगा,
वो एरिया हम नॉर्मली लेते हैं। सो हीट फ्लो के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है, ये वाला है जो हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्योंकि हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है। ओके, सो ये हमारा एरिया रहेगा। अगर मैं इस बार का डायमीटर कम कर दूं, इतना कर दूं, ओके, और दूसरी केस में बढ़ा दूं, सो इस केस में रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो क्या होगा, कम होगा। इस केस में रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो ज़्यादा रहेगा, और इस केस में रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो उससे भी ज़्यादा रहेगा। अब ये एक समझने का दूसरा तरीका है, वेन एवर यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बोन फायर, जब आप बोन फायर के सामने बैठते हो तो आप आपके हाथ इस तरह से करते हो। ओके, वेन एवर डूइंग योर हैंड, वेन एवर यू आर एक्सपोजिंग योर हैंड इन दिस वे, जो भी हीट वेव रहता है वो इस तरह से आपके पाम पे आता है। जब आपका पाम इस तरह से आप बोन फायर को या किसी भी बर्नर को एक्सपोज करते हो तो आपका सरफेस एरिया जो है परपेंडिकुलर, वो पूरा आपका पाम का एरिया रहेगा। दैट टाइम यू स्टार्ट टू फील दैट बर्निंग सेंसेशन वेरी अर्ली, and whenever you start feeling that burning sensation, you putting your hand in like this, and you are holding your hand like this, or you are putting your hand in front of burner like this। so जो भी आपका surface area है वो आपका इतना thickness हो गया सिर्फ। okay, and as soon as you start again feeling colder, you are putting palm in front of that bonfire like this। so again आपका surface area perpendicular area to heat flow path वो क्या हो गया, बढ़ गया। so आप again warm feel करने को start करते हो। and as soon as your threshold or threshold level of that heating sensation or burning sensation reaches, you start to hold your hand like this। so again आपका जो surface area वो क्या हो गया, कम हो गया, or you will stop or you are preventing that burning sensation which is faced by your hand। so जितना surface area आप exposure करते हो heat wave को, उतना आपका rate of heat energy rate of फ्लो ऑफ हीट एनर्जी बढ़ जाता है। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो ये जो है जितना मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो या सरफेस एरिया, आपको क्या ध्यान में देखना है कि द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ हीट वो बढ़ेगा, तभी आपका रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो बढ़ेगा। सो इन दैट वे वी कैन से कि हमारा जो ए है वो जब बढ़ेगा तब हमारा रेट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट द रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो हमारा बढ़ेगा, और वाइस वर्सा, अगर ये कम हो गया तो ये भी कम होगा। सो ऑन दिस थ्री फैक्टर जो हमारा फूरियर्स लॉ है वो गवर्न करता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन। और दूसरा फैक्टर है दैट इज के, दैट इज द फोर्थ फैक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। वी विल सी दिस थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, सो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थर्मल कंडक्टिविटी हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay, so thermal conductivity of material is defined as the amount of, first of all definition देखेंगे, बाद में हम mathematical expression देखते हैं। A thermal conductivity of material is defined as amount of energy flow through a body। Amount of thermal conductivity of material is defined as the amount of energy flow through a body of unit area and unit thickness in unit time when the difference in the temperature between the phases causing heat flow is 1 degree Celsius। okay, what it says, the thermal conductivity of material is defined as the amount of energy flow through a body of unit area and unit thickness in unit time when the difference in the temperature between these phases causing heat flow in 1 degree Celsius। okay, so just we have this thing on another page, जो कि अभी हमने देखा हमारा फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। ओके, Q इज इक्वल टू K इंटू dx बाय dt मल्टीप्लाई बाय A। तो ये जो हमारा K है उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अगर इस K को हम K के टर्म में हम पूरे इक्वेशन को रीअरेंज करें, देन वी विल गेट Q divided by A multiplied by what? Sorry, just a minute. This is dt by dx।
सीरियस लॉ थोड़ा गलत हो गया, जस्ट अ मिनट। सीरियस लॉ है हमारा कि heat energy is directly proportional to temperature difference, inversely proportional to thickness, and directly proportional to the cross sectional area or the area perpendicular to the heat flow. Okay, so अगर k के टर्म में अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, then you will get k is equal to q divided by area multiply by dx, okay, by dt. Okay, so what was the statement? The thermal conductivity of material is nothing but the rate of heat energy transfer, okay, per unit area per unit degree Celsius, okay, by unit thickness of material slab. Okay, so समझो ये स्लैब है, इसका थिकनेस है dx इतना, ये उसका सरफेस है, फर्स्ट सरफेस T1, और ये बैक साइड का सरफेस है, ओके, एग्जैक्टली इसका टेम्परेचर है T2 और T1 माइनस T2 वो 1 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ये जो एरिया है परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो ए वो 1 मीटर स्क्वायर है फॉर एग्जांपल यूनिट। ओके, सो इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है व्हेन सरफेस एरिया इज 1 mm square or 1 meter square, temperature difference is 1 degree Celsius and thickness is unit 1 मीटर लो या mm लो, 1 mm यूनिट थिकनेस इज देयर। तो जो रहेगा वो उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इसका के। सो अगर हम यूनिट की बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की, सो हीट एनर्जी जो है, रेट ऑफ हीट एनर्जी, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, उसका यूनिट है जूल पर सेकेंड। ओके, एरिया का यूनिट है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर यूनिट है। dx is nothing but again meter and dt is nothing but a temperature difference, इसको बोलते हैं डिग्री केल्विन लेते हैं हम इसे। ओके, सो मीटर मीटर विल कट, ये हो जाएगा आपका जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री केल्विन। ओके, अगर इसको रीअरेंज करें पूरे इक्वेशन को, सो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री केल्विन, इसको अनदर टाइम में बोल सकते हैं हम वैट पर मीटर केल्विन। सो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, और ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कुछ अलग रहेगा। अगर मैंने कॉपर लिया, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कुछ रहेगा। अगर मैंने आयरन लिया, आयरन में स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन वगैरह अगर मैंने लिया तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग रहेगा। सो ये जो के फैक्टर है, ये हमारा रेट ऑफ हीट एनर्जी क्या करता है, गवर्न करता है। मतलब जितना के ज़्यादा रहेगा उतना हमारा रेट ऑफ हीट एनर्जी ऑल्सो ज़्यादा रहने वाला है। रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी हमारा ज़्यादा रहेगा, और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो हीट एक्सचेंजर रहते हैं हमारे कार में, रेडिएटर जो रहता है वो नॉर्मली एल्यूमिनियम से बनते हैं। इन केस ऑफ द एयर कंडीशनिंग जो हमारा कंडेंसर रहता है वो कॉपर के कॉइल्स रहते हैं। ओके, बिकॉज कॉपर हैविंग एल्यूमिनियम हैविंग हाई थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू। ओके, हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी रहता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कास्ट आयरन की बात करें और कास्ट आयरन को कॉपर के साथ कंपेयर करें तो वो कॉपर विल गिव यू द मोर थर्मल कंडक्टिविटी। तो जितना के बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा, रेट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो भी बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारा कौन सा मेटल है।
Okay, so this is a thermal conductivity, which is only we are considering in case of the mode of heat transfer calling conduction. Okay, so this is the key. In this lecture we can also, this is the another thing, the simplest thing, on the basis of which you can summarize the Fourier's law of heat conduction. Okay, so this is a cube, okay, having thickness dx, surface, this surface and this surface, which are parallel to each other. Okay, and this is a pure amount of heat energy entering to this surface. Okay, and it will reach up approaching to another surface, that is parallel surface of this one. Okay, and whenever it approaching to the parallel surfaces, that time dx, that is thickness of this slab, area perpendicular to the heat flow, that is a. Okay, and temperature difference between this surface T1 and T2, and thermal conductivity of this metal block is affect on the rate of heat transfer. Okay, so whenever area is increases, that surface area is increases, the rate of heat flow is increases. Whenever K, thermal conductivity is increases, okay, K is increases, that time also हमारा जो rate of heat transfer है वो बढ़ेगा. Whenever temperature differences increases between these two surfaces, ये surface और ये surface के बीच में heat flow हो रहा है ना, so इन दोनों surfaces के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है अगर वो बढ़ गया, देन ऑल्सो हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो बढ़ जाएगा. whenever this thickness of or the path have to travel by this q, heat energy बढ़ जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगा, whenever dx बढ़ेगा, तब हमारा क्या होगा, हीट एनर्जी, रेट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा. सो रेट ऑफ हीट एनर्जी को बढ़ाने के लिए थिकनेस क्या करना पड़ेगा, हमको कम से कम रखना पड़ेगा. सो व्हेनेवर थिकनेस विल रिड्यूस, Q will be increased or vice versa. Okay, so this is the summary of our Fourier's law of heat conduction. I hope you have understood this thing. The Fourier's law of heat conduction says about three parameters: thermal conductivity, temperature difference, thickness, and the area perpendicular to the heat flow path. Okay, thank you.